Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, Welcome to this broadcast. इस प्रसारण में आपका स्वागत है। If you are listening to this broadcast for the first time, यदि आप इस प्रसारण को पहली बार सुन रहे हैं, we have just began a series of messages. तो हमने ये संदेश श्रृंखला अभी शुरू की है। It is on the life of joy and fulfillment. ये आनंद और भरपूरी के जीवन पर है। Joy and fulfillment are only possible through the power of praise. आनंद और भरपूरी केवल स्तुति की सामर्थ्य के द्वारा ही संभव है। We began to look at 4 lessons about praise. हमने स्तुति के विषय पर 4 शिक्षाओं को देखना शुरू किया था। Number 1, नंबर 1, praise reveals to us our true spiritual condition. स्तुति हम पर हमारी असल आत्मिक दशा को प्रकट करती है। The second thing praise does is refocus our personal destiny. दूसरा कार्य स्तुति हमारे व्यक्तिगत भाग्य को पुनः निर्धारित करती है। Thirdly, तीसरा, praise reestablishes God's reign over our hearts. स्तुति परमेश्वर के राज्य को हमारे हृदयों पर पुनः स्थापित करती है। And fourth, और चौथा, praise reinforces our relationship with God. स्तुति परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूत करती है। Last time we talked about number 1. पिछली बार हमने नंबर 1 के विषय पर बात की। Praise reveals to us our true spiritual condition. स्तुति हम पर हमारी असल आत्मिक दशा को प्रकट करती है। And today we'll begin with number 2. और आज हम नंबर 2 से शुरू करेंगे। Praise refocuses our personal destiny. स्तुति हमारे व्यक्तिगत भाग्य को पुनः निर्धारित करती है। I don't have to tell you that this life hassles even the best of us. मुझे आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये जीवन हमसे उत्तम लोगों को भी परेशान करता है। We all find this life's problems are constantly overwhelming us. हम सब इस जीवन की समस्याओं को हमें दबाते हुए पाते हैं। And we see and feel so many things in life that harasses us. और हम जीवन में बहुत सारी बातें देखते और अनुभव करते हैं जो हमें परेशान करती हैं। Whether paying for life's expenses, चाहे जीवन के खर्चों की अदायगी हो, or facing illnesses, या बीमारियों का सामना, or dealing with cantankerous people, या हमेशा झगड़ा करने वाले लोगों से निपटना, or responding to the many demands in life. या जीवन की बहुत सारी मांगों को उत्तर देना। Let me ask you a question. मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। What will happen to the person who only focuses on the problems of life? उस व्यक्ति के साथ क्या होगा जो केवल जीवन की समस्याओं के विषय में ही सोचता रहता है? What will happen to the person who only focuses on the challenges of life? उस व्यक्ति के साथ क्या होगा जो केवल जीवन की चुनौतियों पर ही केंद्रित रहता है? What will happen to that person? उस व्यक्ति के साथ क्या होगा? Very soon, that person's identity will become foggy. बहुत जल्द उस व्यक्ति की पहचान धुंधली हो जाएगी। If you are a believer in Jesus Christ, यदि आप यीशु मसीह में एक विश्वासी हैं, then your identity is in Jesus. तो आपकी पहचान यीशु मसीह में है। But if you allow yourself to focus on your problem, परंतु यदि आप स्वयं को अपनी समस्याओं पर केंद्रित होने दें, then very soon your identity will become foggy, misty, and unreal. तो बहुत जल्द आपकी पहचान धुंधली, अस्पष्ट और नकली बन जाएगी। Very soon you will lose sight of your destiny of heaven. बहुत शीघ्र आप स्वर्ग के अपने भाग्य का दृश्य खो देंगे। Very soon you will slide into pessimism, cynicism, and depression. बहुत जल्द आप निराशा, उदासीनता और तनाव में चले जाएंगे। Very soon your life loses its luster, its joy, and its excitement. बहुत जल्द आपका जीवन अपनी चमक, आनंद और रोमांच खो देगा। At that point you really have 2 choices. इस स्थिति में आपके पास असल में 2 चुनाव हैं। You can choose to place yourself in the posture of praise, आप अपने आप को स्तुति की अवस्था में ला सकते हैं, or keep on going in your foggy night. या अपनी धुंधली रात में चलते रहें। You can choose to be empowered by praise. आप स्तुति के द्वारा सामर्थी होना चुन सकते हैं। At that point, you can choose to be strengthened by the wings of praising the name of the Lord Jesus. इस स्थिति में आप प्रभु यीशु के नाम की स्तुति के पंखों के द्वारा सामर्थ प्राप्त करना चुन सकते हैं। Or you can choose to sink deeper into despair. या आप निराशा में और गहरा डूबना चुन सकते हैं। Why do I say this? मैं ये क्यों कहता हूँ?
Because it is my personal testimony. क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत गवाही है। When I begin to praise the Lord, जब मैं प्रभु की स्तुति करना प्रारंभ करता हूँ, sooner or later my eyes begin to lift from my problem शीघ्र या कुछ ही समय बाद मेरी आंखें मेरी समस्या से हटना शुरू कर देती हैं and they focus on my heavenly position. और वो मेरी स्वर्गीय अवस्था पर केंद्रित हो जाती हैं। This happens regardless of the problems or the difficulties that I'm facing. मैं उन समस्याओं और मुश्किलों से जिनका मैं सामना कर रहा हूँ बिल्कुल लापरवाह हो जाता हूँ। When I begin to praise the Lord, जब मैं प्रभु की आराधना करना शुरू करता हूँ, I feel like a rusty machine. मैं एक जंक लगी हुई मशीन महसूस करता हूँ। Sometimes I can't even get going. कई बार मैं आगे नहीं बढ़ सकता, But sooner or later, you discover that your eyes begins to lift away from your problem and focus on your heavenly position. परंतु जल्द ही या कुछ ही समय बाद आप पाते हैं कि आपकी आंखें आपकी समस्या से हटकर आपकी स्वर्गीय अवस्था पर केंद्रित होना शुरू कर देती हैं। Your eyes are going to lift out of your current condition आपकी आंखें आपकी वर्तमान दशा से हट जाएंगी and think of your position in Jesus Christ. और यीशु मसीह में आपकी अवस्था पर सोचने लगेंगी। Your eyes immediately begin to recognize the smallness of your problem and the greatness of God. आपकी आंखें तुरंत आपकी समस्या के छोटे से आकार को और परमेश्वर की बड़ी महानता को पहचानना शुरू कर देती हैं। When I praise the Lord, जब मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ, my eyes shift from the temporary to the permanent. मेरी आंखें अस्थाई से स्थायी पर केंद्रित हो जाती हैं। My eyes begin to see with clarity my eternal destiny. मेरी आंखें स्पष्ट रूप से मेरे अनंत भाग्य को देखने लगती हैं। My eyes begin to see God in the heavenly realm where His power permeates. मेरी आंखें स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर को देखने लगती हैं जहां उसकी सामर्थ्य व्याप्त है, Where His strength dominates. जहां उसके बल का शासन है, Where His position is supreme. जहां उसकी पदवी सबसे ऊपर है। This is how praise begins to refocus my destiny. इस प्रकार से स्तुति मेरे भाग्य को पुनः केंद्रित करती है। Our praise of God refocuses us on what is really real and what is fleeting. परमेश्वर के लिए हमारी स्तुति हमें उस पर पुनः केंद्रित करती है कि क्या असल है और क्या सिर्फ एक छलावा है। Praise reveals our spiritual condition. स्तुति हमारी आत्मिक दशा को प्रकट करती है। Praise refocuses our personal destiny. स्तुति हमारे व्यक्तिगत भाग्य को पुनः केंद्रित करती है। And the third thing about praise that I want to share with you is this. और स्तुति के विषय में तीसरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो ये है, Praise reestablishes the reign of God upon our lives. स्तुति परमेश्वर के राज्य को हमारे जीवनों पर पुनः स्थापित करती है। Earlier we established that God pitches His tent in a unique way. पहले हमने सिद्ध किया कि परमेश्वर अपना तंबू बड़े अलग ढंग से लगाता है when He begins to hear the praises of His children. जब वो अपने बच्चों की आराधना सुनना प्रारंभ करता है। And when God is present in this very special way, God rules. और जब परमेश्वर इस बहुत ही खास तरीके से उपस्थित होता है तो वो राज करता है। He does not come just to sit with you and only listens to you. वो केवल आपके पास बैठने और आपको सुनने के लिए ही नहीं आता। He does that, but He does more. वो ऐसा करता है परंतु और भी कुछ करता है। When you invite Him in praise to come, जब आप स्तुति में उसे आमंत्रित करते हैं, He comes to rule and reign in your life. वो आपके जीवन पर राज और उसे नियंत्रित करने के लिए आता है। The Bible is very clear when it says God indwells the praises of His people. बाइबल बहुत स्पष्ट है जब यह कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति में रहता है। It means that God is now ready to take over. इसका अर्थ है कि अब परमेश्वर नियंत्रण करने के लिए तैयार है। I often say God never takes sides. मैं अधिकतर कहता हूँ कि परमेश्वर भाग नहीं लेता, He takes over. वो नियंत्रण करता है। And that is the absolute truth. और ये यथार्थ सत्य है। So how does God take over? तो परमेश्वर अधिकार कैसे करता है? Your praise of Him is your invitation for Him to come and rule. उसके लिए आपकी स्तुति आमंत्रण है कि वो आए और अधिकार कर ले।
And you must be prepared to surrender. और आपको समर्पण के लिए तैयार रहना आवश्यक है। And that is why some people don't like to praise the Lord, because they know He's going to take over. और इसीलिए कुछ लोग प्रभु की स्तुति करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो पूर्ण अधिकार कर लेगा, And they are not ready for that. और वो इसके लिए तैयार नहीं है। By praising God, you are saying, God, you are my authority. परमेश्वर की स्तुति करने से आप कहते हैं, परमेश्वर तू मेरा अधिकारी है, You are my ruler. तू मेरा शासक है, You are my king. तू मेरा राजा है, You are my sovereign. तू मेरा सम्राट है। And that is what you are doing. और आप ऐसा ही करते हैं, And He comes in and He takes over. और वो आता है और अधिकार कर लेता है। When you invite God to dwell in your marriage, be ready, because He will take over your marriage. जब आप परमेश्वर को अपने विवाहित जीवन में आकर रहने का निमंत्रण देते हैं, तो तैयार रहें, क्योंकि वो आपके विवाहित जीवन को नियंत्रित करेगा। When you invite God to come into your family, जब आप परमेश्वर को अपने परिवार में आने का निमंत्रण देते हैं, He will take over your family. वो आपके परिवार पर नियंत्रण रखेगा। When you invite God to come into your church, जब आप परमेश्वर को अपनी कलीसिया में आमंत्रित करते हैं, He will take over your church. वो आपकी कलीसिया को अधिकार में ले लेगा। When you invite God to take over your school, जब आप परमेश्वर को आपके स्कूल पर अधिकार करने का निमंत्रण देते हैं, He will take over your school. वो आपके स्कूल पर पूर्ण अधिकार करेगा। And that is why praise is our foremost means of inviting God to take residence in our hearts. और इसीलिए परमेश्वर को हमारे हृदयों पर अधिकार करने के लिए निमंत्रण देने का स्तुति प्रमुख जरिया है। And therefore we are inviting Him to reign and rule supreme in our hearts. और इसीलिए हम उसे आमंत्रित कर रहे हैं कि वो हमारे हृदयों पर सर्वप्रभुता से नियंत्रण और राज करे। Praise is our foremost means of asking God to take absolute authority over our lives and our circumstances. स्तुति हमारा परमेश्वर से ये कहने का कि वो हमारे जीवनों और परिस्थितियों पर संपूर्ण अधिकार कर ले एक मुख्य जरिया है। Praise is our foremost means of asking God to establish or re-establish His authority over us. स्तुति परमेश्वर से ये कहने का कि वो अपने अधिकार को हम पर स्थापित या पुनः स्थापित कर ले हमारा मुख्य जरिया है। And that's precisely why some people are afraid of the life of praise. और बिल्कुल इसी वजह से कुछ लोग स्तुति के जीवन से डरते हैं। And they say, oh, I praise God on the inside. I don't have to speak it out. और वो कहते हैं, मैं अपने अंदर ही परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, ये मुझे बोल कर करने की आवश्यकता नहीं है। I pray that you'll begin the life of praise today. मेरी प्रार्थना है कि आज ही आप स्तुति का जीवन शुरू करें। I pray that you will begin to understand the relationship between what you say and God's presence and rule in your life. मेरी प्रार्थना है कि आप जो कहते हैं वो और आपके जीवन में परमेश्वर के अधिकार और उपस्थिति के मध्य में संबंध को आप समझना शुरू करें। Because you must understand, God does not like to share His authority. क्योंकि आपको ये समझना आवश्यक है कि परमेश्वर को अपने अधिकार का बंटवारा पसंद नहीं है। God does not like the 50-50 program. परमेश्वर को वो आधा आधा कार्यक्रम नहीं भाता। God does not like to share His rule. परमेश्वर अपने राज्य को साझा करना पसंद नहीं करता। God does not like to share His power. परमेश्वर अपनी शक्ति को बांटना पसंद नहीं करता। God does not like to share His glory. परमेश्वर अपनी महिमा को बांटना पसंद नहीं करता। That's who He is. यही वो है। He either takes over or takes off. वो या तो पूर्ण अधिकार करता है या बिल्कुल नहीं करता। Some may ask, do you mean I'm going to lose my salvation? कुछ शायद कहें, तुम्हारा मतलब है कि मैं अपना उद्धार खो दूंगा? Absolutely not. बिल्कुल नहीं। I'm not talking about losing your salvation. मैं आपका उद्धार खोने के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। When you come to Jesus Christ and your name is written in the book of life, nothing changes that. जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाता है, तो उसे कोई नहीं बदल सकता। But I will tell you that what you're going to lose when He does not dominate in your life, परंतु मैं आपको बताऊंगा कि जब वो आपके जीवन में राज नहीं करता तो आप क्या खोने वाले हैं। what you will lose is your joy. आप अपना आनंद खो देंगे। Because when He comes in and takes over the reins, क्योंकि जब वो आकर नियंत्रण कर राज करता है, He brings joy with Him. तो वो अपने साथ आनंद लाता है।
When He's out of your life, there can be no joy. जब वो आपके जीवन से बाहर होता है तो वहाँ कोई आनंद नहीं हो सकता। Let me summarize. मैं इसकी व्याख्या करता हूँ। Praise reveals our spiritual condition. स्तुति हमारी आत्मिक दशा को प्रकट करती है। Praise refocuses our personal destiny. स्तुति हमारे व्यक्तिगत भाग्य को पुनः केंद्रित करती है। Praise reestablishes God's reign in our hearts. स्तुति हमारे हृदयों पर परमेश्वर के राज्य को पुनः स्थापित करती है। But the fourth point is this. परंतु चौथा विचार ये है, Praise reinforces our relationship with God. स्तुति परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूत करती है। You know, one of the problems of all human race आप जानते हैं कि मानव जाति की समस्याओं में से एक is that we find it very easy to fall in love with ourselves. ये है कि हमारे लिए खुद से प्यार कर बैठना बहुत आसान है। We do that especially if we get a little bit of success here and there. ये खासकर हम करते हैं यदि यहाँ वहाँ हम थोड़ी बहुत सफलता पाते हैं। We really do that. हम वास्तव में ऐसा करते हैं। If we do well, then all of a sudden we begin to think that we are really great. यदि हम अच्छा करते हैं तो तुरंत हम सोचना शुरू कर देते हैं कि हम असल में महान हैं। We begin to think that we are God's gift to the universe. हम सोचना शुरू कर देते हैं कि हम परमेश्वर की तरफ से इस सृष्टि को दिया हुआ एक उपहार हैं। We can easily fall in love with our ability. हम आराम से अपनी योग्यता के साथ प्यार में पड़ सकते हैं। We can easily fall in love with our intelligence. हम आराम से अपनी बुद्धिमत्ता के साथ प्यार में पड़ सकते हैं। We can easily fall in love with our cleverness. हम आराम से अपनी तेज तरारी के साथ प्यार में पड़ सकते हैं। We can easily fall in love with our knowledge and our abilities and our status. हम आराम से अपने ज्ञान, योग्यताओं और हैसियत के साथ प्यार में पड़ सकते हैं। We can easily begin to think we are the best. हम आराम से सोचना शुरू कर सकते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। But here's what praise does. परंतु स्तुति ये करती है, Praise reminds us of who we really are and who God really is. स्तुति हमें स्मरण दिलाती है कि हम असल में कौन हैं और वास्तव में परमेश्वर कौन है। Praise reminds me that I am a sinful human being. स्तुति मुझे स्मरण कराती है कि मैं एक पापी मानव हूँ। Praise reminds me that I am redeemed and saved only by the pure grace of God. स्तुति मुझे स्मरण दिलाती है कि मैं केवल परमेश्वर के शुद्ध अनुग्रह के द्वारा ही छुड़ाया और बचाया गया हूँ। And that's what praise does. और स्तुति यही करती है। Praise places me and all of my limitations in the light of God's great forgiveness. स्तुति मुझे और मेरी सब सीमाओं को परमेश्वर की महान क्षमा की ज्योति में स्थापित करती है। Praise places me and all my faults in the light of God's great forgiveness. स्तुति मुझे और मेरी सब गलतियों को परमेश्वर की महान क्षमा की ज्योति में स्थापित करती है। Praise places me and all of my sins in the light of God's forgiveness. स्तुति मुझे और मेरे सब पापों को परमेश्वर की क्षमा की ज्योति में लाती है। Praise reminds me of the power of the forgiveness of God. स्तुति मुझे परमेश्वर की क्षमा की शक्ति का स्मरण कराती है। Praise reminds me of what a tiny fraction of God's love and wisdom and power I really comprehend. स्तुति मुझे स्मरण दिलाती है कि असल में परमेश्वर के प्रेम, बुद्धि और शक्ति के कितने छोटे से अंश को ही मैं समझता हूँ। Praise makes us say with Job, I know that you can do all things. स्तुति हमें अयूब के साथ कहलवाती है, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। No plan of yours can be thwarted. तेरी कोई योजना निष्फल नहीं हो सकती। My ears had heard of you, but now my eyes have seen you. मेरे कानों ने तेरे बारे में सुना था, परंतु अब मेरी आंखों ने तुझे देखा है। Therefore I despise myself and repent in dust and ashes. इसलिए मैं अपने आप को नीचा करता हूँ और धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। But please don't misunderstand what I'm saying. परंतु कृपया जो मैं कह रहा हूँ उसे गलत मत समझिए। The reason of recognizing who I really am and who God is इस बात को पहचानने का कारण कि मैं असल में कौन हूँ और परमेश्वर वास्तव में कौन है, is not so that I might walk through life saying, oh, poor me. ये नहीं है कि मैं ये कहते हुए जीवन जीऊं कि ओ मैं गरीब।
I am a sinner, I'm unworthy, I can't do anything. मैं पापी हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। Don't ask me to serve or do anything because I am not worthy. मुझे सेवा या कुछ करने के लिए ना कहो क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ। No. The purpose is not that. नहीं 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 नहीं, ये मकसद नहीं है। That's how people twist the truth and twist the facts. इसी प्रकार से लोग सत्य और तथ्यों को मरोड़ते तोड़ते हैं। On the contrary, being realistic about my sinfulness leads me to repentance. इसके विपरीत अपनी पाप पूर्णता के विषय में हकीकत में रहना मुझे पश्चाताप की ओर ले जाता है। And true repentance brings me to true appreciation of the goodness and the mercy and the grace of God. और सच्चा पश्चाताप मुझे परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी दया और उसकी अच्छाई के सच्चे गुणानुवाद पर ले आता है। And that's what it does. और ये यही करता है। The more we are realistic about our weaknesses and faults, the more we comprehend God's graciousness. अपनी कमजोरियों और गलतियों के विषय में जितने अधिक हम व्यवहारिक रहते हैं, उतना ही अधिक हम परमेश्वर की कृपालुता को समझते हैं। The more I comprehend the graciousness of God, the more excited I am about serving Him. परमेश्वर की कृपालुता को जितना अधिक मैं समझता हूं, उतना ही उसकी सेवा करने के लिए उत्तेजित होता हूं। And that's what praise is really all about. और असल में यही है स्तुति। And that is why the Bible from cover to cover tells us that the secret of fulfillment and joy is a life of praising the Lord. और इसीलिए एक पन्ने से दूसरे पन्ने में बाइबल हमें यही बताती है कि भरपूरी और आनंद का रहस्य है प्रभु की स्तुति से भरा हुआ जीवन। It is my deep desire that today you begin the life of praise. ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप आज ही स्तुति का जीवन प्रारंभ करें। And I pray that you would write to us and tell us how praise is changing your life. और मेरी प्रार्थना है कि आप हमें लिखें और हमें बताएं कि स्तुति कैसे आपका जीवन परिवर्तित कर रही है। Until we meet again, I wish you God's richest blessing. दोबारा मिलने तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।